question from 2021, right? And then we will solve question and okay. So please join the session so that we can start it. Okay. So the very first question is there on your screen from 2021. Okay, this is the very first question. GATE 2021 CSE, right? Computer Science and Engineering. So yes, please try this question and let me know the answer, guys. Okay. So these are the PYQ that I'm solving, and you see whatever concept we have covered, and based on that we will be solving, right? So the ratio of boys and girls here they have given the ratio of boys to girl is given as 7:3, right? Among the option below, an acceptable value of total number of students in the class, right? That you have to find. Understand? What you can do here is, the total is nothing but 10 parts here, right? The total is 10 part, you can say, right? And then it should be always, what you can do here is, it should be the multiple of, 10 only, right? The option, which option is going to be correct here? So you can directly hit the answer, right? So if you take this 50, right? So what multiplier you're going to multiply here? So you can say 5. You have to multiply 5 here, so it is 15, and it is going to be 5, so it will be 35. So 35 student will be the boy, you can say the number of boys will be 35, and okay, so answer for this question will be 50. Directly you can answer this question, right? Since they have given the ratio, okay, so total part is 10, right? You have to look for that option which is nothing but a multiple of 10, right? So in this question directly you can answer, the answer will be 50, right? So this question can be done in 3 seconds. This kind of question, and 35 number of boys will be there, and 15 will be the you can say will be the okay, girls. I think this is clear. Okay, so you can I believe anybody can solve the question the moment you look at the question, those who have watched my session, right? Okay, let us take next question, guys, and yes, so I believe this is the answer only. You can check also from the actual answer key, right? So the answer for this question will be what? 50 is the correct answer for this question. Okay. Now let us take next question, the question number 2 on your paper. Fine. So let me take the second question. The second question is nothing but from a very good question. You can read also. I will show you on the plate here. You see, this is second question which was asked in computer science GATE 2021, right? So as you can see here, guys, let us read the question first. A polygon is convex, okay, if for every pair of the points P and Q belonging to the polygon, the line segment PQ lies completely inside or on the polygon. That is called the convex polygon, that everybody knows, right? So if you take 2 points, okay, that should always lie inside the polygon. That is called the convex polygon. That's what they are trying to say here, right? There are two kind of polygon, convex and concave. मैंने आपको बताया भी था, ठीक है? So a polygon is convex if for every pair of point P and Q belonging to the polygon, right, the line segment PQ lies completely inside the polygon. If you take 2 points, okay, so they must lie, okay, completely in the polygon, right? So which of the following is not a convex polygon, that we have to find out, right? So this question is great again, and this question can because I have covered the type of polygon, right? The type of polygon we have covered, okay. So you have to find which one is not the convex polygon. So this will be the convex polygon, okay. This is going to be convex polygon. This is, you take any point here, it is going to be completely inside, right? If you take here completely, right, take here completely. But in this case, if you take point here and here, right, so you see this line is going to be outside. So correct answer for this question is what? According to the question you have to go, right? So you see here they are asking not. This is the important word here, right? So the option A will be correct here, okay. This polygon is not a convex polygon, because if you're going to choose 2 points inside the polygon, and if you draw the line segment on it, so the line segment is going to be outside here, right?
but what is the meaning of convex polygon? आपको पता होना चाहिए convex polygon is nothing but a polygon if you choose any two points, pair of points inside the polygon, so that should completely lie inside the polygon, right? That is nothing but a convex. So I taught also convex and concave polygons, right? So I believe you can recall from the geometry. So this was the second question. Again, you can solve this question in 3 to 4 seconds. Okay, so I believe this is fine for all. Okay, in 2021, this was the second question. Now let us try next question. Next question is question number 3rd. This is a question in front of you. So question number 3rd says that consider the following sentence. Everybody in the class is prepared for the examination. Babu invited Danish to his home because he enjoys playing chess. Which of the following is a correct observation about the above two sentences? Okay, so you have to check grammatically whether grammatically these two options are correct. I mean, these two statements are correct. You have to check grammar, right? So I taught also these things. Okay, like recently we conducted English class also, right? So I think you guys can solve. So everybody in the class is prepared for the exam. Babu invited Danish to his home because he enjoys playing chess. Okay, so which option is going to be correct here, right? So option says that first is grammatically correct and second is unambiguous. Okay. Second, grammatically incorrect, unambiguous, grammatically correct and is ambiguous, right? And is grammatically incorrect and is ambiguous. So can somebody tell me the answer here? Those who are like those who have attended my English class, they will be able to tell this answer also, right? Yes. So you can see here, so here the first option is correct. I mean, the first sentence is correct grammatically. Okay, everybody in the class is prepared for the examination. This is correct. Okay, because this is grammatically correct, you can say, because everybody is a singular. Okay, and it takes singular word that you know. Okay, and the first statement is correct, and the second statement is kind of ambiguous. Okay, the purpose of invitation is unclear. Okay? See, Babu invited Danish to his home because he enjoys playing chess, right? So what is the purpose behind that? Why he had invited, that we don't know, right? So second sentence is what? Second sentence is you can say ambiguous, right? So you can say that the answer for this question is option C, right? Fine. So this question again you can do within 5 seconds if you read the question and you can solve the question. So English questions are very simple one, right? Which are asked in GATE computer science, right? So question number 3 is done. So you got 3 marks, right? Now let us go to next question, and this question is asked from you can say special aptitude. Okay, so I will just take the question and then paste here. Question number 4 was asked from the folding. Okay, yes, let me read the question and you try this. So what is this question here? Question number 4. A circular sheet of paper is folded. Right? You can read the question here on the screen. A circular sheet of paper is folded along the line. Okay. In the direction shown. Okay. So this is a circular sheet of paper, and you're going to fold it. Right. So first of all, you have to fold like this. Then you have to fold like that. Okay. That is very important. The paper after being punched in the final folded state as shown and unfolded in the reverse order is of folding will look like what? So you are folding first like this. Okay, suppose any circular sheet of paper is there, right? You are first folding like this, then you are folding up, and then you are what? You are punching it like this. This is a punch. Okay? So if you are opening, suppose you are going to open it, so first you will open down, right? So what kind of figure you are going to get? That is the important question, right? So again, this is a common sense question. Anybody can solve it, right? I mean, it does not need extra knowledge. आपको ये समझना है कि you have got a piece of paper, you are folding it, right, like this. पहले आपको कैसे वो जो arrow बना है, you have to follow that arrow. You fold it and then you fold it again, and then what you're doing here is you punched it, right? Punch. तो punching करोगे तो कुछ ऐसा आएगा.
जब आप ओपन करोगे तो एक सर्कल तो बीच में आने वाला है, राइट? दैट सर्कल इज गोना बी देयर जब ओपन करोगे रिवर्स ऑर्डर में. So which option is can be correct here? That is what the question is. Please try this question and then I will tell you the solution, right? So clearly it is mentioned that if you're going to open it, so एक तो ये वाला तो wrong होगा. Wrong क्यों होगा? Because you're not opening like this. First you have to open, you can say with respect to this line, okay? Then you have to open like this, okay? With respect to vertical line, right? पहले तो आपको horizontally open करना है, ठीक है? Horizontally. So when you will open horizontally, right? Okay. So you will get this kind of a situation. Let me draw here. तो आपको कैसा मिलेगा situation? कुछ ऐसा मिलेगा, right? And here like this. So which option is correct here? Option C will be correct, right? So these kind of questions can be done, naturally. It is not a tough question. Let us move to next question, right? So you can see this question is from if folding, okay, in the reverse order if you're going to open it, right? Fine. And next question is from English, okay? So let us solve this question. So question number 5. So you have to maximally give 10 to 15 minutes to solve, PYQ, I mean the aptitude part in the main examination. So you see this question number 5. Question number 5 is what, guys? You can read the question here. Which of the following, dash is to surgery as writer is to what? So which of the following option maintains a similar logical relation in above sentence, right? So ये analogy based question, analogy. तो मतलब A is to B, then B is to C, you can say, right? Like this, or C is to D. तो अगर मान लो ऐसा है कि ये analogy है, A is to B and C is to D. So what is to surgery as writer is to what? So options देखो यहाँ पर क्या है? Plan, या plan is to surgery and writer is to outline. Hospital is to surgery, library, writer is to library, okay? Doctor is to surgery and as a writer is to book, okay? Medicine is to surgery and writer is to grammar, okay? So these things are very important, right? So you have to think, okay? And if you think here, which option is going to be correct? You guys can tell me, okay? You guys can try this question, and this is a very good question. Understood? Yeah. So what will be the answer here? By profession you can connect here. डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना. राइटर का काम है बुक लिखना, राइट? सो it is very direct question which was asked. So doctor is to book surgery and book writer is to write a book, you can say, right? So this will be the correct option for this question. Again, you can solve this question in 3 seconds, right? No other options are correct. You can connect with the profession, right? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. तो 5 क्वेश्चन वी हैव डन, राइट? 5 क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आपको टॉपिक देखते जाना है, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन और आया है फ्रॉम द ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर 6. आप देखिए क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन नंबर 6 इज वी हैव 2 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर M and N, of a dimension 6 centimeter to 1 centimeter each, okay? So you have a 2 rectangular sheet of paper, right? Sheet M is rolled to form an open cylinder by bringing the short edge of the sheet together, and sheet N is cut into equal square patches and assembled to form the largest possible, you can say, closed cube, right? Assuming the ends of the cylinder are closed, okay, the ratio of the volume of the cylinder to the cube क्या होगा? ठीक है. It's a very kind of practical question, you can say. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. जैसे आपके पास A4 शीट है, उसमें इसको आप फोल्ड करोगे इन ऑर्डर टू मेक अ सिलेंडर, राइट? तो 6 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल शीट है, 2 रेक्टेंगुलर शीट है, राइट? तो 6 वाला क्या होगा? ये ब्रेड्थ हो जाएगा, और जो हाइट होने वाला है दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, यू कैन से, राइट? मतलब इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? अब आपको इसको फोल्ड करना है. So tell me the answer here, guys. Which option is going to be correct here, and how to solve this question correctly?
सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक 2 शीट ऑफ पेपर, ओके। और आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम द सिलेंडर इज नथिंग बट यू नो you have to multiply pi r square h, right? And volume of the cube is going to be what? That also you have to remember. So volume of the cube will be what, right? अगर 1 centimeter का आता है तो volume of the cube will be 1 only, right? Okay, चलो. So let me draw here the situation. So this is the sheet here M. आप बोल सकते हो ये 6 centimeter का है and this is 1 centimeter. जब आप इसको फोल्ड करोगे, when you are going to fold it, right? तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड कर दोगे, राइट? तो 1 सेंटीमीटर हाइट है और इसका जो रेडियस होने वाला है, व्हाट विल बी द रेडियस हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर विल बी व्हाट, 6 सेंटीमीटर विल बी, जब आप कोई भी सिलेंडर को ओपन करते हो, द 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द 2 पाई आर, और यू कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ द टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर, राइट? तो आप बोल सकते हो इसको जब आप रोटेट फोल्ड करते हो कुछ ऐसा आएगा सिचुएशन। तो ये तो आपका हाइट है 1 सेंटीमीटर, और उसमें कुछ भी नहीं बोला है, राइट? कि यू कैन रोटेट आल्सो, काइंड ऑफ यू हैव टू जस्ट फोल्ड इट सिंपली, राइट? जो भी क्वेश्चन में एक बार आप रीड भी कर सकते हो कि वी हैव 2 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर M and N of the dimension 6 centimeter into 1 centimeter each. Sheet M is rolled to form an open cylinder by bringing the shorter edge of the sheet together. मतलब ये जो शॉर्टर एज ऑफ द सीट है ना, उसको ऐसे करोगे, लॉन्गर नहीं, शॉर्टर। शॉर्टर कौन सा है, 1 सेंटीमीटर है, यही हाइट होने वाला है। और 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द टॉप सरफेसेस, इसका पेरीमीटर है, राइट? मतलब जब आप ये देखोगे तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो काइंड ऑफ, आई होप दिस मेक्स सेंस। 2 पाई r is going to be 6 centimeter, right? So r is going to be 6 by 2 pi, which is nothing but 3 by pi. R is, now you got r, right? Now what is the area, guys? Area, sorry, what is the volume? Volume of the cylinder is nothing but V cylinder, you can say, is going to be pi r square h. So pi r is nothing but 9 by pi square, you can say, into 1. So it is nothing but 9 by pi. 9 by pi, okay? 9 by pi. I hope this makes sense. Now, if you take the same here and let me draw here. आपके पास same sheet है, you can say this is N, 6 centimeter है, and this is 1 centimeter, right? Now you have to fold it, okay? You have to fold this, right? What is the question again, you can go through. So sheet N is cut into equal square patches. आपको sheet N को कट करना है इक्वली, समझ गया ना? तो आपको पता है कि 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, राइट? 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, लेट मी शो यू। तो ये 6 सेंटीमीटर अगर है तो आप क्या करोगे इक्वल में, तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, राइट? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लाइक दिस, ठीक है? तो आपके पास किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, राइट? ये देखो, आप बोल सकते हो कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, देन 1 सेंटीमीटर, राइट? 1 सेंटीमीटर, तो 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm, right? 1 cm and then 1 cm, right? And this is 1 cm. So 1 2 3 4 5 6, there are 6 square, okay? और आप क्यूब बना सकते हो। क्यूब कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, this cube, and there are 6 faces in the cube of 1 centimeter each side, okay? तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विल बी व्हाट, वॉल्यूम विल बी a cube, which is nothing but 1 cube, right? So 1. So ratio you have to find, ratio, so ratio of what, ratio of V cylinder by V cone, V cube is going to be 9 by pi. So I think this is clear, answer will be 9 by pi, okay? So it's a very simple question, okay? तो आपको रीड करना है, उस टाइम क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम। चाहे धीरज सर पढ़ा दें या कोई भी पढ़ा दें, राइट? लेकिन मैं जो बताया हूँ थोड़ा सा ज़्यादा इजी लैंग्वेज होता है, तो मेरा काम क्या है कि एकदम इजी से देखो, रीड द क्वेश्चन, रिएक्ट इट, ओके? द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू हैव टू रिएक्ट। तो वी हैव 2 रेक्टेंगुलर शीट, राइट?
ठीक है, जो जो बोल रहा है आप करते जाओ, और कैसे फोल्ड करना है वो भी यहाँ बता दिया शॉर्टर एज को लेके। अब आपको सारा मैथ्स क्लियर होना चाहिए, थ्योरी तो मैंने आपको बता दी है। तो वट एवर क्वेश्चन आर बींग आस्क्ड, the theory will be matching with the question. Okay? You will be able to solve the question. That is what I can guarantee. Okay. Now let us go to next question. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर 2 मार्क का फ्री मार्क्स है ना। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई कैन से इट वाज आस्क्ड इन 2021, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 we will see now. The question number 7 is again from profit and loss. अब आपको पता है कि धीरज सर ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, तो आई थिंक you should never face any challenge, right? तो जो काम आपको करना चाहिए दैट काम आई एम डूइंग, राइट, सो दैट यू कैन फील इट कि कैसा क्या होता है। तो मेरा मेन ओपिनियन क्या है, इफ थ्योरी इज मैचिंग विद द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो रीड करो क्वेश्चन क्या दिया है। डिटेल ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू आइटम P and Q आर प्रेजेंटेड इन द above table. The ratio of the cost of the item P to cost of the item Q is 3:4, right? डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। ये सब स्टोरी है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। द प्रॉफिट, ये डेफिनेशन दी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट, दिस इज टाइम वेस्ट, ओके। दैट द प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। ये डेफिनेशन दी है प्रॉफिट परसेंटेज की, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको इसमें परेशान नहीं होना है। बस आपको क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ द प्राइस P यहाँ दिया है, सब दिया है। अब पूछा क्या है, देखो, डिस्काउंट ऑन द आइटम Q एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन यू सी। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आई बिलीव 1 मिनट थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हैं, इफ यू नॉट एबल टू सी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस जो भी है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट ऑन द Q एज परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस आपको निकालना है, राइट। तो सी यहाँ पर आपको ये दिया है कि रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस P, ओके, एंड द आइटम Q इज 3:4। तो मार्क प्राइस आपको इसका दिया है, ओके। तो आप समझ सकते हो कि P/Q का कॉस्ट प्राइस दिया है 3:4। अब आपको यहाँ पर P का कॉस्ट प्राइस 5400 दिया है। यू डोंट नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस गाय, otherwise you can find the discount, okay, understood. So आप समझ सकते हो कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने रहेंगे। यू कैन सी हियर द टोटल पार्ट्स, राइट, द टोटल पार्ट्स इज 7 हियर। तो आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कि you will get something, right? So certainly you can remember that इसका हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1800 तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई अगर करते हो आप तो 54 मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। तो इसमें 1800 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यू विल गेट हियर व्हाट, यू कैन गेट हियर डायरेक्टली, राइट। सो इट बिकम okay, so you can find the cost price of Q, which is nothing but 4 into 1800, right? Since you have got the cost price, okay, and you have got the mark price here, mark price, अब आपको क्या निकालना था, डिस्काउंट ऑन द आइटम Q, राइट, डिस्काउंट ऑन आइटम, इसमें प्रॉफिट दिया है 25%, राइट। व्हाट इज द आंसर गाइज, यू कैन आंसर आल्सो। सो मैं कॉस्ट प्राइस आपको डायरेक्ट बता दिया, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, राइट। यू गाइज कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या तो आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 30 to 40 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट आपको पता चल चुका है, दैट इज 7200, अगर आपका थोड़ा सा मैथ अच्छा है तो, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट निकालना था, राइट, कॉन्सेप्ट आपको सब पता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज आल्सो गिवन हियर, राइट। तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द डिस्काउंट, ओके। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट इज नथिंग बट if discount is given, suppose, right, discount is nothing but what, the mark price and the selling price, okay। अब selling price आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, what will be the selling price here। so mark price is 10,000 and the cost price is what, you can say here 7200, okay, and profit is 25%, okay। so you can find out the selling price, right। so selling price क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दैट यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट फ्रॉम द कंसेप्ट दैट यू नो, राइट। जैसे ही सेलिंग प्राइस आता है तो मार्क प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस विल बी द आंसर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, इफ यू नो द प्रॉफिट परसेंटेज, यू नो द कॉस्ट प्राइस, राइट,
यू कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस. कैसे निकालते हैं, लेट मी टेल यू. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज 7200, राइट, एंड आप इसको कितने परसेंट से सेल कर रहे हो, 25% एक्स्ट्रा पैसा लगा के ये सेलिंग प्राइस आपको देगा. 25% ऑफ 7200 कितना होता है, 25%, राइट. 25% अगर आप इंक्रीज करते हो तो ग्राफिक मैंने आपको बताया था एक तरीका, 25% ऑफ 7200, 25 मीन्स 1/4, 1/4 इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा. आप इसमें क्या ऐड करोगे, दैट यू शुड नो, राइट. सो यहाँ पर क्या ऐड करना है, 7200, ओके, और इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 25% अगर आपको निकालना है तो, राइट. सो 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगी, 4 1 जा 4, राइट, एंड देन 4 8 जा 1800. क्लियर है, 1800 ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, आई बिलीव 9000. सेलिंग प्राइस आपका आ गया 9000 डायरेक्ट. ठीक है, आपको कोई एक्स एंड बाई नहीं यूज करना है, ठीक है. याद रखना, रेशियो से कॉस्ट प्राइस आ गया, मल्टीप्लायर फाइंड करके, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था रेशियो का. फिर उसके बाद आपको क्या, कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस इज 9000. ये सेलिंग प्राइस किसका सेलिंग प्राइस है भाई, क्यू का. ठीक है, अब आपको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस में, मतलब मार्क प्राइस में आप जितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, राइट. आई बिलीव व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, द डिस्काउंट ऑन एन आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस. ठीक है, तो सिंपल है, यू कैन फाइंड आउट दी परसेंटेज. कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, एब्सोल्यूट डिस्काउंट कितना है, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं. डिस्काउंट परसेंटेज मीन्स आपका मार्क प्राइस कितना दिया है, MRP, दैट इज गिवन एज आई बिलीव 10,000, राइट. क्वेश्चन में आप देख सकते हो, दिस इज गिवन एज 10,000, राइट, एंड देन, ठीक है, तो एब्सोल्यूट आ जाएगा 1000, और ये 10,000 है MRP, राइट, इंटू 100%. तो यही आंसर है आपका, इसमें है क्या. ठीक है, तो 10% आंसर आएगा, राइट. So directly you can mark the answer as 10, right. So in this question, the answer for this question is what, 10. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, राइट. आई बिलीव दिस इज फाइन. तो आपको एक तरीका बताना चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आया इस क्वेश्चन में. रेशियो दिया है, आप सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस फाइंड करो. डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस आपका अगर ज्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट आएगा. तो व्हाट परसेंटेज यू हैव टू इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस सो दैट यू कैन गेट द सेलिंग प्राइस. ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ इजी है, राइट. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन. नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसा है. क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्वेश्चन बहुत सही आ गया था. देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट आया है वो प्रोबेबिलिटी से आया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. तो मैंने आपको बताया भी है कि जो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है बेसिक में, दैट यू कैन गो थ्रू. तो ये एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2021. So there are 5 bags, each containing identical set of 10 distinct chocolates, right. 5 bags हैं और 10 distinct chocolates हैं, right, containing identical set of 10 distinct chocolates. One chocolate is picked from each bag. Now the question is the probability that at least 2 chocolates are identical. Question क्या है दिया है, the probability that at least 2 chocolates are identical, and ये ऑप्शन दिया है. तो इसमें आपको कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़ेगा, आई बिलीव. ये तो आप बता सकते हो डायरेक्टली, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका. You guys can just tell me the answer, right, in the chat box, okay? And we can, yeah, at least you guys try so that I can understand कि you have understood something, right. So 10 distinct chocolate, distinct chocolate का मतलब क्या होता है, देखो कितना दिया, 10 distinct chocolates are there, right, chocolates, and कितने बैग्स हैं, 5 बैग्स आर देयर. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक 1 chocolate is picked from each bag, right, and then probability that at least 2 chocolates are identical, that is a question. So what you can do, if they are asking that probability that at least 2 chocolates, so it can be 2, it can be 3, it can be 4. So आप हमेशा क्या किया करो इस क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना, the probability of at least 2 chocolates, right, is equal to 1 minus the probability of
एग्जैक्टली वन चॉकलेट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है, राइट। एग्जैक्टली वन कैसे फाइंड करेंगे? एग्जैक्टली वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफरेंट। तो आपको, आपके पास 5 बैग हैं, तो आप पहले से कोई भी निकाल सकते हो, दूसरे से, है ना। तो 10, बहुत ही सिंपल सिचुएशन है यहाँ पर, राइट। सो इसका हो जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 9 इंटू एग्जैक्टली वन, मतलब एक ही ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो रहा है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, राइट। और आपको कितने निकालना है? एक एक निकालना है, ठीक है। 5 बैग से निकालना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपॉन कितना हो जाएगा? 10⁵, राइट। सो इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट आंसर एज 0.6976 काइंड ऑफ, या सो यू विल गेट द आंसर एज C, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 question is very simple question. I mean, if you have attended my class on syllogism, so ये question तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ हाउ फास्ट यू कैन डू। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के स्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन हो सकते हैं। एक होता है इमीडिएट कंक्लूजन, एक होता है मेन कंक्लूजन। जब आप 2 सेंटेंस को इंक्लूड करके बताते हो, उसको मेन कंक्लूजन बोलते हैं। सो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट 1 and 2 एंड द 2 कंक्लूजन। अच्छी बात है कि 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हैं। And based on the above statement, one and the conclusion, which of the following question option is logically correct, right? तो आप देखोगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो। तो ऑल दियर टिक क्रॉस मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट। टिक क्रॉस मेथड आप आराम से यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टिक क्रॉस मेथड, ओके। तो टिक क्रॉस मेथड अगर आप यूज करते हो, सम के जगह में क्या होता है? क्रॉस क्रॉस, राइट। ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, ये सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये क्रॉस एंड टिक। तो अब देखो मैच करो क्या है। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो इसमें, तो कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा, इसका आंसर डी होगा डायरेक्ट। और कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ऐसा बताओ? क्योंकि मिडल टर्म जो है ना, उसमें 2 क्रॉस आ गए हैं, तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। आंसर आपका डी होगा डायरेक्ट। 2 सेकंड में आंसर करना है, राइट। ये टिक क्रॉस मेथड से मैंने आपको बताया था, मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? जो कॉमन टर्म होगा, राइट। If 2 terms are common, right, in 2 sentences, that is called the middle term. And if both, if the both terms, common term has got the cross, okay, so answer आएगा ही नहीं, no conclusion, ऑप्शन ही नहीं है कोई भी, राइट। तो आई बिलीव दिस इज क्लियर, राइट। सो इसको आप 2 सेकंड में कर सकते हो आंसर को, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा थ्योरी जानता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। आई बिलीव दिस इज फाइन फॉर ऑल। तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको, आप वेन डायग्राम से करोगे, टाइम वेस्ट है, दैट इज टाइम वेस्ट, प्योर टाइम वेस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। एज आई टोल्ड यू, आई एम टीचिंग यू जनरल एप्टीट्यूड, तो यू कैन सेव योर टाइम एंड आल्सो कंसेप्चुअली सॉल्व करो क्वेश्चन को, तो मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। लेट अस मूव ahead टू सॉल्व 10th क्वेश्चन। ये भी इंग्लिश से क्वेश्चन है और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करते हैं। Fine, so let us move ahead and solve this. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सम पीपल सजेस्ट, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, PQQ, टोन क्वालिटी क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। टोन ऑफ द पैसेज समझो पहले क्या दिया है। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है। सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इन द रेस्टोरेंट मेन्यूज। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी measures such as displaying calorie information in the restaurant menus. Such measures is side step addressing the core problem that cause obesity, poverty and the income inequality. Which of the following statement summarizes the passage? तो ये कौन सा स्टेटमेंट है जो समराइज करता है पैसेज को, राइट। तो पहले आप ऑप्शन रीड करो। कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो जो फैक्चुअल है, मतलब जो आपको लगता है ये करेक्ट है वो नहीं होगा करेक्ट। आपको हमेशा इस तरह, whenever you going to solve question based on inference based question or any passage is given, so what you have to do here is you have to answer the question according to the author. अपने अकॉर्डिंग मत दो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग दोगे तो गलत आएगा।
तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन डी देखो, एवं आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली, ये सब जरूरी नहीं है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है एवं आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली, ये आप सोच रहे हो ऐसा, राइट। तो ऑप्शन डी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी विल नेवर बी करेक्ट। तो आप ऐसे क्वेश्चन रीड करके ही आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, एक बार रीड करें पूरा, फिर आपको, अभी डायरेक्टली आप नहीं बोलोगे, ठीक है। द प्रपोज्ड एओएम एड्रेसेस, हो सकता है डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, राइट, क्योंकि ऐसा वर्ड यहाँ पर यूज हो गया है, ठीक है। अभी जस्ट वेट, ओके, ठीक है, चलो। तो अभी डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। टोन ऑफ द पैसेज समझ में आ गया है, टोन ऑफ द पैसेज है, कुछ पॉजिटिव ही बातें की जा रही हैं ओबीसीटी से रिलेटेड। तो ठीक है, द प्रपोज्ड एओएम एड्रेसेस द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी, राइट। तो ये तो डायरेक्ट आपके जो स्टेटमेंट में दिया है यहाँ पर, राइट। सो कि सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर्स सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इन द रेस्टोरेंट मेन्यू, सच मेजर्स साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर दिया है ना। कुछ पीपल सजेस्ट करते हैं, बाकी ये कोई प्रपोज्ड एवं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इट ओबेसिटी, इफ ओबेसिटी रिड्यूसेस पॉवर्टी विल नेचुरली रिड्यूस, देन ओबेसिटी कॉज पॉवर्टी। ये क्या है, ये कहीं मेंशन नहीं है, ये फैक्ट आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा अरे ये तो सही हो सकता है। एवं आर एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम एंड आर लाइकली टू सक्सीड, ये भी नहीं है, ये वाला करेक्ट हो सकता है, दिस इज करेक्ट, ओके, बिकॉज यू नो एवं आर एड्रेसिंग प्रॉब्लम सुपरफिशियली। सुपरफिशियली का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन से दैट सुपरफिशियली इज वन ऑफ द काइंड ऑफ की वर्ड, यू कैन से, ओके, जो कि यू कैन से अपेरेंटली और सीमिंगली, राइट। तो ये आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो मैंने पहले ही उसको एलिमिनेट किया था, ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन ए से रीड करना चालू करोगे और आपको रियलाइज होगा कि सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके डन है गाइस, और 10 में से अगर आप एक क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बट आई बिलीव आप 15 में 15 स्कोर करोगे इस पेपर से, ठीक है। मैं अगर होऊंगा तो 15 आउट ऑफ 15, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप 15 में 15 स्कोर करिए, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट गेट 2022 पेपर। आपको भी ऐसे अपने से करना है, जो भी डेज बचे हैं आराम से पेपर उठाइए, पीवाईक्यू ओरिजिनल वेबसाइट में जाइए, वहाँ सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 2020 से स्टार्ट करते हैं, 2022। देखो पहला क्वेश्चन 2022 का जो दिया है इंग्लिश का है, ठीक? अब हम स्टार्ट करेंगे गेट 2022 CSE कंप्यूटर साइंस। आप सारे ब्रांच का कर सकते हो प्रैक्टिस। अब देखो थोड़ा सा तो टाइम लगना ही है, ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, एक सेकेंड, मीनिंग में डिफरेंस है ना। देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो जो बच्चे इंग्लिश से दूर भागते हैं तो उनको फिर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है। देखो कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट करना सीखो पहले, ठीक है। इसमें फेयर और फेयर ये तो गलत है, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, राइट। ये भी नहीं गलत है, क्योंकि ये स्पेलिंग हमने आज तक नहीं देखी है, राइट। अब ऑप्शन 5 कितने ए और बी के बीच में, द फेयर इज टू हाई, ओके, फॉर इट टू बी कंसीडर्ड फेयर, राइट। तो फेयर में कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताओ। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर, आई बिलीव दिस इज फाइन, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप आराम से कर सकते हो कि सर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, ओके। So you guys can also check with the official key also, but according to me fair and FAIR, right, that is fair means you understand that, जैसे आप लोग फ्लाइट का फ्लाइट बुक करते हो उसका फेयर क्या है ना, तो FARE, राइट। स्पेलिंग का यहाँ पर ध्यान देना है बस, ठीक है। तो यस, राइट, सो ये आप, आई बिलीव दिस इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस टेक हियर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, एक नंबर का आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है मैथ में, कैलकुलस में प्रॉपर तरीके से, आप सॉल्व कर ले जाओगे डायरेक्ट।
अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये कैलकुलस टाइप का है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एप्टीट्यूड में आया है। तो देखो क्या दिया है, अ फंक्शन y of x is defined in the interval 0 to 1 x on x, okay, so for different value of x, मतलब जो रेंज यहाँ पर डोमेन x दिया है, रेंज है जैसे 2 3 1, अब सारे वैल्यू y के कांस्टेंट हैं, राइट। तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया अंडर द कर्व फॉर द इंटरवल 0 to 1, मतलब 0 से 1 के बीच में एरिया निकालना है। क्या इसमें क्या है, आप सीधा सीधा प्लॉट कर लो पहले, प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और प्लॉट करोगे तो आपको कुछ एक यू कैन से फैमिलियर पॉलीगन पता चल जाएगा। मान लो रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना इजी है, नहीं तो इंटीग्रेशन आप लोग करोगे, इंटीग्रेशन करोगे देन आप मिस्टेक भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट 0 to 1/3 आप समझ सकते हो, इसको ऐसे प्लॉट करो पहले, ये बाई है, एक्स है, सारे फंक्शन ये जो बाई ऑफ एक्स है ये कांस्टेंट है। अब बोल सकते हो ये कितना है 1/3, ये बोल सकते हो आप 3/4 है, 1/3 और 0 to 1/3 कितना है 2 है, ठीक है। 1/3 से लेके 3/4 कितना है, ये जंप यहाँ पर है देखो 3 है, और फिर इसके बाद ये कितना है 1 है, डाउन आ जाओ, ठीक है, ये राइट, इट इज 1 फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। ये कितना है आपका 1, बस एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, ये इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया, आई होप दिस मेक सेंस राइट। और इसके बीच में एरिया आपको सिंपली निकालना था। तो अगर आप प्लॉट कर लेते हो तो आपकी लाइफ ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और प्लॉटिंग मेक्स योर लाइफ मोर इजियर, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा प्लॉट कर लीजिए और एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो प्लॉटिंग के बाद आप एरिया निकाल सकते हो, ये पूरा इसका ये एरिया और ये एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले का एरिया कितना होगा देखो, इट विल बी 2 × 1/3 प्लस इसका आप देख लो कितना है। आई होप दिस मेक सेंस राइट। सो डिफरेंस नीचे का बिट देखो 3/4 से 1/4 राइट, एंड हाइट कितनी है 3 है वहां पर, सो यहाँ पर आएगा 3 × 3/4 -1/3, ठीक है। देखो नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो आपको थोड़ा ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 1 × बिकॉज यहाँ तो हाइट 1 ही है, का देखो तो 1 - 3/4, जब आप इसको सॉल्व करोगे what answer you going to get, that is important, that is 13/6। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से 40 सेकंड में तो कर ही सकते हो, देयर इज नो हार्म एट ऑल। सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क। थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द अलजेब्रा। तो टेक एनी क्वेश्चन एज अ फ्रेश क्वेश्चन कि 2024 में आएगा, आ चुका है ऐसा सोचा करो, राइट। लेट आर बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपको निकालना है इसका, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि आर क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। अगर कोई भी वैल्यू दिया है, बोला है कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, मतलब वो रूट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपको सिंपली एक्स के जगह में आर रख देना है, सिंपल सा पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये पहला रिएक्शन है कि r² + 2r + 6 = 0। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन गाइस, ओके, आई बिलीव दिस इज फाइन। ये पहला रिएक्शन आपका है कि जैसे ही आपको पता चला कि r इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सिंपली आप पुट करो, सेटिस्फाई होना चाहिए, r² + 2r + 6 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर आ जाओ, इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आई बिलीव दिस इज फाइन फॉर ऑल, मतलब आपका ये सेकंड रिएक्शन होना चाहिए कि आप ये आपको पता चल गया है, राइट। ओके, लेट मी राइट हियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि r² + 2r = -6। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, r² मल्टीप्लाई किया, ये 5r + 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, r² + 9r + 20। अब आप कितना फास्ट लिखते हो दैट मैटर्स अ लॉट, ओके, ऑन यू, राइट, क्योंकि कितना फास्ट, देखो मैंने कितना फास्ट लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है r² + 2r = -6, ना, ये दिया है, तो आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो r²
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3r प्लस 6, इसको आप लिख दो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 7r प्लस 20। तो यहाँ पर आप लिख दो -6, और यहाँ पर आप रख दो -6 प्लस 7r प्लस 20। तो 6 कैंसिल हो गया, 3r आ गया, यहाँ से 7r प्लस you subtract this, so it will be 14. Okay, so I think this is clear. ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन ले सकते हो। 7 कॉमन लोगे तो 21 आ जाएगा, r को अंदर ले लो तो r स्क्वायर प्लस 2r हो गया। फिर से इसको पता है आपको वैल्यू 21 माइनस 6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहा 6 एंड 6 2 12 -126। देखो कितना स्मार्ट तरीके से वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The moment you see the equation and they have mentioned that the r is going to be what, the root of the equation, what you have to decide here is the first reaction should be you have to plug that root into the equation so that that equation should satisfy. Okay, and ये देखो कितना स्मार्ट तरीका है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। फिर से एक क्वेश्चन आया आपका सिलोजिज्म से, तो उसको भी ले लेते हैं। सिलॉग के क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 सिलॉग का है, सिलोजिज्म लैंग्वेज ऑफ डिडक्शन। गिवन अ 4 स्टेटमेंट गाइस, all students are inquisitive, don't worry about meanings and all. Statement 2, some students are inquisitive, no student is inquisitive, and some students are not in it. Okay, so from given 4 statement, find the 2 statement that cannot be true simultaneously, assuming that there is at least one student in the class, right? There is at least one student in the class. At least का मतलब क्या होता है? At least का मतलब होता है there can be many student in the class, right? At least 1 2 3 so many, right? Okay, that is very very important. So here they are not asking you to kind of find out the conclusion and all, just आप read करो statement और समझो इसका situation क्या है, right? So all students are inquisitive, some students are inquisitive, right? No student is inquisitive, ठीक है? Some students are not inquisitive, right? So find the 2 statements that cannot be true. जो true नहीं है उसको टिक करना है, assuming that there is at least one student in the class. Yeah, please tell me how we can solve this question, right? So देखो, if all students are, you can say, inquisitive, right, all, तो ये true हो सकता है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि no students are inquisitive, ये false है by default, you can say, right? ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, क्योंकि इन द क्लास एक स्टूडेंट तो होगा ना जो कि इनइक्विजिटिव होगा, राइट? तो ये जो नो स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज रॉन्ग, राइट? नो स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट जो क्लास में होगा स्टूडेंट वो तो इनइक्विजिटिव होगा। सम, अब देखो ये पहला स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दिया है, राइट? मतलब यू कैन से दैट स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, बट पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? ओके, अब यू सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी बोथ फर्स्ट एंड third can be what? Can be false also, right? Okay, तो यहाँ पर which option is gonna be correct? तो आप बोल सकते हो कि statement 1 and statement 3 will be what? According to the question will be correct, right? So statement 1 and statement 3 will be correct because they are saying that 2 statement cannot be true simultaneously. एक साथ नहीं correct हो सकता, एक साथ। देखो, all students are inquisitive and no student is inquisitive, तो एक साथ ये नहीं करेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर, राइट? या पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट, राइट? अब देखो क्या होता है कि जब गेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में, तो उनको पता रहता है कि बच्चों को इतना डिटेल नहीं पता होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे शहर से बिलोंग करते हैं, सबका मीडियम अलग अलग होता है, राइट? तो वो लोग बता देते हैं पहले कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। जैसे आप
मॉम बोलोगे MOM, तो अगर आप लेफ्ट साइड से रीड करो, इधर से रीड करो, बराबर है। मामा बोलो MAME, राइट। जैसे 1 to 1 नंबर होगा, ये पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अब पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, ये हम लोगों के लिए बोला गया, पीपल हु बिलोंग फ्रॉम विलेज, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जिनको मतलब काइंड ऑफ समझ सकते हो ना कि इतना वो नहीं है इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, गेट निकालने के बाद IIT में जाने के बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड। अगर आप इधर से पढ़ो सेम इधर से, जैसे मलयालम हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इन अ गेम ऑफ वर्ड अ प्लेयर हैज द फॉलोइंग टू प्लेट्स पेंटेड विद द लेटर्स from the additional plate given in the options, which one of the you can say that which one of the combination of additional plate would allow the player to construct a 5-letter palindrome? Palindrome का मतलब क्या? इधर से पढ़ो सेम आना चाहिए। The player should use all 5 plates exactly once and plate can be rotated in their plane। मतलब आप ऐसा नहीं है कि D उल्टा दिया है, A उल्टा दिया, you can do like, so can you take this? अगर आप इनको लेते हो मतलब, तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ही होगा फर्स्ट, लेकिन अगर आप इनको ले लो, तो अगर आप ऐसा लिखते हो कि RADAR, कुछ भी लिख दो, राडार काइंड ऑफ वर्ड्स आ रहा है, तो आप इधर से पढ़ो राडार आएगा, इधर से पढ़ो राडार, तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट हियर, बाकी सारे रॉन्ग हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। आई बिलीव दिस इज फाइन फॉर ऑल। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड, जो आप इधर से भी पढ़ो, रख के चेक कर सकते हो। तो पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है। तो राडार एक ऐसा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट हियर। तो जो मीनिंग है उसको पहले समझो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आराम से। पैलिंड्रोम याद रखना, पैलिंड्रोम इज अ नंबर, पैलिंड्रोम आल्सो कैन बी द वर्ड, राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो सर्टेन है आपके इन्फ्रेंस से, ये 100% आने वाला है, फिक्स है। इन्फ्रेंस इंग्लिश में एक क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपको टोन क्वालिटी क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी। देखो फिर से रीड करो क्वेश्चन। सम पीपल बिलीव दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड improves, some other people believe that what gets measured gets gained, ठीक है। ये देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि what gets measured improves, some people other people believe that what gets measured gets gained। other possible reason for differences in beliefs is the work culture in the organization। तो कुछ निगेटिव चीजें हैं, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है। अगर टोन ऑफ द पैसेज पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, टोन ऑफ द पैसेज निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा। आपको समझना है ये चीज। नाउ इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर मैट्रिक्स हेल्प इंप्रूव आउटकम्स, हाउएवर द सेम मैट्रिक्स आर काउंटर प्रोडक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन विद पुअर वर्क कल्चर, ठीक है। तो ये कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। So which of the following is the correct logical inferences based on the tone of the passage? आपको पता चल गया है कि kind of something is negative over there, right? So metrics are useful in organization with poor work culture। अब ये क्या है? right? Metrics are useful in organization with good, ये दो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आप सोचिए, ठीक है। Metrics are always counterproductive in organization with good, good work culture, and metrics are never useful in organization with good work culture। अब देखो, तो अगर metrics, if you are not going to check your performance, कैसे चीजें improve होंगी, right? That is also one of the very important thing। So which answer is going to be correct here, guys? Tell me, okay? तो जहां पर देखो, यहाँ पर क्या है, यू सी हियर, तो ये तो बहुत ही बैड आंसर है, ये तो हो नहीं सकता। अगर मैट्रिक्स नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? क्योंकि उसमें लिखा भी है व्हाट गेट्स मेजर इम्प्रूव, राइट। मैट्रिक्स आर ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। एंड मैट्रिक्स आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद, ये भी क्या है, राइट। तो अगर कोई भी चीज मेजर होती है उसमें भी कुछ निगेटिव चीजें, देखो गेट्स गेम्ड लिखा है, right? So which option can be correct here? The option which I feel is metrics are is useful for good work culture, right? तो ये तो बहुत important है, तो option B can be the correct choice here, ठीक। Next
अब ये प्योर डिपेंड करता है आपके ब्रेन में गाइस, कैसे आप लोग पढ़ते हो, एंड आराम से आप निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन रिसेंटली कंडक्टेड नेशनल इंट्रेंस, ओके, ये परसेंटेज से प्रॉब्लम देखो आया है। Boys constituted 65% of those who appeared for the test, right? The girls constituted the remaining candidate and they accounted for 60% of the qualified candidates. Which of the following is the correct logical inference based on the information provided in the above passage? Equal number of boys and girls qualified. The equal number of boys and girls appeared for the test. Number of boys who appeared for the test is less than the number. आपको बस ये देखना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है बस, right? In recently conducted national exam, boys constituted 65, okay, percent of those who appeared for the test, right? So total आपके पास 100% है, तो 65% boys हो गए, right? You can say. And girls constituted the remaining candidates, and they accounted for 60% of the qualified candidates, right? तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा हैं जो कि गर्ल्स हैं, राइट? ओके, सो आप यहाँ पर बताओ क्या आंसर है, विच ऑप्शन कैन बी करेक्ट हियर? यस, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये भी गलत है। ओके, आई बिलीव दिस इज फाइन, क्योंकि अगर ज्यादा गर्ल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना? अब फाइट किसके किसके बीच में? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बीच में है, राइट? तो नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड। नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाइड इन द टेस्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्योंकि 60% क्वालिफाइड हो रहे हैं गर्ल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दैट यू कैन ऑलवेज बाय इंस्पेक्शन यू कैन सॉल्व। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि अपीयर्ड कितने एक्स हैं, तो अपीयर्ड 65 हो गए, गर्ल्स 35%, ऐसा सोचो। देखो मतलब 65% अपीयर हुई तो 35%, और पास कितने लोग हो रहे हैं? देखो पास कितने लोग हैं, मतलब जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो 60% अगर गर्ल्स पास हो रही हैं, कैन से दैट 40% एंड 60%। तो आप देख सकते हो कि परफॉर्म, मतलब नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाई द टेस्ट इज लेस कंपेयर टू, है ना? क्योंकि कम, यहाँ पर देखो, यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट, question number 7 is done, guys. A very simple question. A question number 8 is, I believe, from, yeah. A box contains 5 balls of the same size and the shape, right? ये probability का question है, देखो। Okay, this is a question from probability, guys. You guys can try this question. कैसे solve करेंगे? देखो, a box contains 5 balls of the same size and shape. 3 of them are green colored ball and 2 of them are orange colored ball. The balls are drawn from the box one at a time, and if the green ball is drawn, it is not replaced. Okay, if the orange ball is drawn, it is replaced with another orange ball. The first ball is drawn. What is the probability that, or probability of getting an orange ball is the next draw? Okay, it's a very good question, right? You guys can try. ये क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से है, एंड इफ यू हैव अटेंडेड माय क्लास ऑन प्रोबेबिलिटी, द बेसिक प्रोबेबिलिटी, यू गाइस कैन सॉल्व इट। तो कितने बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो? 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ऑरेंज बॉल्स आर देयर, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ऑरेंज बॉल्स। थ्री ग्रीन बॉल्स एंड 2 ऑरेंज बॉल्स। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑरेंज बॉल इन द नेक्स्ट ड्रॉ, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट ऑरेंज बॉल इन नेक्स्ट ड्रॉ।
ठीक है, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन राइट, यू गाइस कैन डायरेक्टली ट्राई दिस। तो आप बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ से निकालते हो, ठीक है, तो बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वन एट अ टाइम। सो अगर आप एक बॉल निकालते हो, है ना, तो यू कैन, टोटल बॉल कितने हैं देखो, 5 है, 3/5 अगर आप यहाँ निकालते हो क्या, यू कैन से दैट ग्रीन एंड यू कैन टेक हियर ऑरेंज, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। ओके, अब अगर नेक्स्ट ड्रॉ में क्या आपको निकालना है, आपको पता चल चुका है नेक्स्ट ड्रॉ में आपको निकालना क्या है। नेक्स्ट ड्रॉ में आपको निकालना है, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू, सेकंड ड्रॉ में आपको फिक्स है कि you have to find orange, right? This is a total probability theorem, I believe. तो ग्रीन थ्योरम अगर आप निकाल, मतलब ग्रीन बॉल्स अगर आप निकाल चुके हो, देखो यहाँ लिखा है ग्रीन अगर बॉल निकाल चुके हो तो एक बॉल कम हो जाती है, राइट। तो आपको ऑरेंज निकालना है, क्या, तो एक तो निकाल चुके हो, ठीक है, और ऑरेंज अगर निकाल लिया तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करके आराम से निकाला जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 3/5 अगर आप निकाल चुके हो ग्रीन, तो उसको वापस नहीं रख सकते हो, तो 2 ही बॉल हैं ऐसे ऑरेंज कि आप 4 में से 2 बॉल निकाल लो। एंड ऑरेंज अगर आप निकाल लिए हो तो स्टिल यू कैन गेट दी ऑरेंज 2/5। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई बिलीव, राइट। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, भाई क्या दिक्कत है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज इज गोइंग टू बी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, TPT, ठीक है। तो लाइफ इज वेरी सिंपल हियर, सो 3/5 इंटू 2/4 प्लस 2/5 इंटू 2/5, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई बिलीव यू नो इट इज 6/20 प्लस 4/25, एंड इसको आप सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, राइट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 23/50। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना इजी तरीका है, नहीं तो अभी आपको मैं फॉर्मूला लिख देता बड़ा सा, ऑरेंज इंटरसेक्शन ये हो, तो ओ माय गॉड सर ये क्या आपने बता दिया। पहले ड्रॉ, ये हमेशा आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया करो, बड़ा सा प्रॉब्लम है, डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल लगाना है, आपको प्रॉब्लम को ब्रेक कर देना है स्टेजेस में। तो पहला स्टेज क्या है, निकालना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड स्टेज में रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो 2/4 2/5 है, दीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहले में अगर ग्रीन आया है, सेकंड में हमें ऑरेंज निकालना है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करना है। और इसमें रिप्लेसमेंट करना है तो नंबर ऑफ बॉल्स आर गोइंग टू बी इंटैक्ट, ओके। This is a very good question, 2 mark question, a free question from my classroom, right? Okay, so question 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9. A corner and the midpoint of the side of a triangle are named using distinct PQRSTU, but not necessarily in the same order. Right? Consider the following statement. The line joining P and Q is parallel to the line joining Q and S, sorry. The P is placed on the side opposite to the corner T. ना? And S and U are, बस जो जो इंस्ट्रक्शन दिया आप नोट करते जाओ, और क्या चाहिए इसमें ना। The corners and the midpoint of the side ऑफ द ट्रायंगल नेम्ड यूजिंग PQ। देखो कोई एक ट्रायंगल आप ले लो, बोल दिया ट्रायंगल तो ट्रायंगल लेते हैं, अभी नेम PQRST ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो लाइन ज्वाइनिंग P एंड R इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड S। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये पक्का ये मिड पॉइंट होंगे, राइट, यू कैन से दिस इज QS, दिस इज P एंड R, पक्का ये कुछ ऐसा होगा पैरेलल, ये तभी तो पैरेलल आएगा। P is placed on the side opposite to the corner T, right? So P is placed on the side, okay, opposite to the corner T, right? And S and U cannot be placed on the same side, मतलब you can say S and U, मतलब ये S है तो U यहाँ नहीं रख सकते हैं, सेम साइड आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। S U को कहीं यहाँ रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following statement is correct based on the above information? तो देखो यहाँ पर ये सिचुएशन है कुछ, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
Okay, so you draw it, right? So this is very very important to keep in mind. Okay. तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? ऑप्शन इज गिवन, P cannot be placed at the corner, right? And S cannot be placed at the corner, U cannot be placed at the midpoint, R cannot be placed at the midpoint, right? Which option is going to be correct here? तो देखो, अगर ये यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर बोल दिया था ना कि लाइन ज्वाइनिंग Q and S, ओके, एंड P and R शुड बी पैरेलल, तो आप बोलोगे यहाँ Q है, ये S है, अगर आप ऐसा ले लेते हो, चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक, फॉरगेट अबाउट अदर, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर ये पैरेलल है तो अगर आप यहाँ पर देखो Q and S अगर आप यहाँ ले लिए तो S मतलब कॉर्नर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन में ये जो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है? ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड अगर आप पूरा एनालाइज करते हो क्वेश्चन को, तो क्योंकि आप फर्स्ट में क्या रख सकते हो, देखो this is very important to keep in mind. Okay, you can also replace this by P, and S can also be replaced by what? S can also be replaced, I mean by Q. Okay, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर P R and Q S, P R है आपका and Q S both are you know parallel, right? So you can say that here R can be, यहाँ भी आप बोल सकते हो कि no, this is very important, right? चलो, और क्या दिया है? S and U cannot be placed on the same side, right? So अगर S यहाँ पर है तो U यहाँ नहीं होगा, right? तो U सेम साइड नहीं होना चाहिए, तो U यहाँ हो सकता है, ठीक है? U here U can be, yeah, this is very important to keep in mind. Okay, so yeah, so which option is correct here? Option B will be correct for this. Okay, so this is very important to keep in mind. और आप U यहाँ भी रख सकते हो, U you can place here also, ठीक है? U you can place there also, right? Okay, बट सेम साइड नहीं होना चाहिए बस, फाइन। नेक्स्ट, मतलब इस साइड में आप कहीं भी यू नहीं रख सकते हो, यहाँ पर रख दो, बाकी इस साइड में नहीं रख सकते, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस, राइट? चलो नेक्स्ट, ये आपको सोचना है और सॉल्व कर लेना है। अभी क्वेश्चन और आया था, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अ प्लॉट ऑफ लैंड मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन 4 फैमिलीज, और इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ तो सही रहेगा। राइट, सो आप क्वेश्चन देखोगे तो प्लॉट ऑफ लैंड मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन, ये 10th क्वेश्चन है, 2022 का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। तो अ प्लॉट ऑफ लैंड मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन 4 फैमिलीज, दे वांट देयर इंडिविजुअल प्लॉट टू बी सिमिलर इन शेप, राइट, नॉट नेसेसरली इक्वल इन एरिया। The land has equally spaced plots marked as a dot in the, okay, the two ropes R1 and R2, okay, are already present and cannot be moved, इनको हम मूव नहीं करेंगे। What is the least number of additional straight line straight rope needed to create the desired plot? A single rope can pass through the 3 poles, okay, that are aligned in the straight line. तो मतलब समझ सकते हो इसका क्या आंसर है, right? So you can just try, okay. बस यहाँ पे ये याद रखना है कि they want their individual plot to be similar in shape, not necessarily in the, okay, so they can be rectangle or whatever, right? So three dots आपको क्रॉस करना है, ठीक है, only 3 dots, okay. Yes guys, so this is a very good question that you can try, okay. So ये naturally you can I believe this question can be done, ठीक है। तो आपको कितने प्लॉट्स आएंगे आप देख सकते हो, तो अगर आप इसको एनालाइज करते हो गाइस तो 4 प्लॉट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 4 प्लॉट्स आप देख सकते हो। तो यू कैन से दैट अगर आप 3 को यहाँ कर दो ना, एक, राइट,
3 आप इनको ज्वाइन कर दो, राइट, ओके, नॉट नेसेसरली द इक्वल एरिया, एरिया इक्वल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, ठीक है, तो 1 2 3 4, ओके, इसको आप मूव नहीं करोगे, ठीक है, तो 1 2 3 4, ओके, अंडरस्टूड। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एडिशनल स्ट्रेट रोप्स नीडेड टू क्रिएट, मतलब आपको एडिशनल, तो आप समझ सकते हो कि दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आएगा, ओके, understood। So what is the least number of additional ropes needed to create the desired rope plots, and the single rope can pass through 3 poles that are aligned in the straight line। तो अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे तो कितने आएंगे, जैसे आप यहाँ ड्रॉ किया तो एक प्लॉट बन जाएगा, एंड 2 1 प्लॉट बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लॉट बन सकता है, राइट, यहाँ पर, ओके, fine। So this question can be done directly, right? So the question for this is, the answer for this is 4, right? So you can find out, ये completely आपके ऊपर है। एंड गेट 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उसको भी देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको खुद का माइंड अच्छे से लगाना है, राइट, सो यू कैन गेट द आंसर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 में अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, यू कैन जस्ट लीव इट। अब देखो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023। मान लो अब तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो ये देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज वी रीच द स्टेशन लेट एंड डैश मिस द ट्रेन। तो नियरली आंसर होगा, देखो नियर कैन नॉट बी द आंसर, एडवर्ब यूज करना है। अटरली मीन्स काइंड ऑफ कंप्लीटली, यू कैन से मोस्टली, सो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है, नियरली इज द राइट आंसर। तो वी रीच द स्टेशन लेट एंड नियरली मिस द ट्रेन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एनालॉजी से आया था, सेकंड क्वेश्चन, सो 5 सेकंड आपको लेना है क्वेश्चन में। तो काइंड इज टू व्हाट डैश ऑफन इज टू फ्रीक्वेंटली, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो काइंड इज टू व्हाट, तो डोंट से दैट काइंड इज टू काइंडली बिकॉज ऑफन इज टू फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इनका मीनिंग सेम है, ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली सेम। तो काइंड का सेम मीनिंग क्या होता है, टाइप, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर आल्सो, ओके। सो सेम मीनिंग का एनालॉजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर f1 f2 f3 f4 f5 obeys this recurrence relation, you can say fn+1 equal to, ये तो कंप्यूटर साइंस वाले बहुत ज्यादा करते हैं, राइट। फॉर ऑल द वैल्यू, फॉर ऑल इंटीजर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट, ओके। सो यू कैन से दैट अगर आप 2 रखते हो तो 3 इक्वल टू f2 प्लस f1, फिर आप अगर यहाँ पर रखते हो f3 तो ये f4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f3 प्लस f2। तो यहाँ पर आप f3 के जगह में रख सकते हो, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग समथिंग, ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, अब आप अगर f5 करते हो तो f5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f6, f6 इज इक्वल टू f5 प्लस f4, राइट, क्योंकि n इक्वल टू 5 रख रहे हो, f because f6 is given here and f7 is given, right। so you can say that अगर आप 6 रखते हो तो f7 f6 f5, right? तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू, अब f5 निकाल लो यहाँ से, तो f5 कितना आ जाएगा, f5 इज नथिंग बट 60 माइनस 37, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 3 एंड दिस इज 23 आ गया, है ना। तो f5 आपका 23 आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट f6, f4 निकाल सकते हो यहाँ से, तो f4 कितना आ जाएगा, 37 माइनस 23, राइट। क्योंकि आपको निकालना क्या था f1, तो आपको ऊपर बैक ट्रैक करना है, राइट। तो यहाँ से तो बहुत ईजी है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया, ये 24 आ गया, राइट।
अब यहाँ से आप निकाल सकते हो F2 बिकॉज आपको F3 पता है, सॉरी you know that this is F4 you got right, okay, or that is fine. So F4 is known here and F2, F3 is known or not, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको F5 पता है, F6 पता है, right, you got F4. now F4 will be kept here, so यहाँ से आपको क्या मिलेगा, F2, क्योंकि F3 is known or not, right, so you have to just go back, right, going back is the solution here. तो पहला 23 है, F5 is 23 and then F4 पैटर्न आपको देखना है क्या है, तो यहाँ से ये F4 आ गया था, राइट, सही है, एंड देन ओके, सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, पैटर्न आपको समझना है बस, राइट, ओके, आई विल आल्सो चेक दी ऑफिशियल की सो दैट है ना, यस, तो लेट मी ओपन दी ऑफिशियल की, हाँ, तो फिर अब F4 आ गया यहाँ से, तो F4 के लिए अब F4 इज नोन, राइट, F3, yes, so F3 should also be known, right, fine, yeah, because we have to find what, we have to find F1, right, so we have to get F3 and F2 and so that you can get it, right, so ये तो बहुत ही सिंपल मुझे ऐसा लग रहा है कि kind of, let me check it, right, so it's a recursive relation kind of thing, the kind of recursion is there, okay? So like you have got F5, that is 23, okay, so you got you can find F3 also, so because F3 is going to be what, F3 is nothing but F5 minus F4, तो मतलब आप निकाल सकते हो, तो F3 निकालने का तरीका क्या है, F3 is nothing but F5 ओके, अगर आप इसको, ठीक है, एक सेकेंड, तो आपको दो वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाती हैं, राइट, कि यू गॉट F, ओके, ठीक है, F4 is nothing but this, F5 is 23, F4 is nothing but 14 I believe, या कितना आया था हमारा, 14 it will be, sorry there is a mistake I think, 20, वही तो मैं सोच रहा था, there was some error, right, you can say F5 you got that is 23, F4 you got that is nothing but 14, right. now you have to find F3, so F3 can be what, F3 F4 and ये कितना F2 हो जाएगा, ठीक है, तो F4 minus F2, right, so F3 can be what, F3 if n equal to 4 if you kept, right, so n equal to 4 मतलब you can get F3 right from there, so n equal to 4 अगर यहाँ आप रखते हो, ठीक है, n equal to 4, ठीक है, तो it will be nothing but F4 equal to F5 minus F3, तो यहाँ से आप F3 निकाल सकते थे, तो F3 will be what, that is correct, yeah, so F3 is going to be F4 minus F5, F5 minus F4, so it is 23 minus 14 is what, 23 minus 14, that is okay, that is correct, minus 14 is 9, ठीक है, अब आगे क्या निकालना है आपको, यू हैव टू गो फॉर F2, F2 विल बी F4 माइनस F3, तो 5 आ जाएगा सीधा, यहाँ से F2 विल बी 5 and then you have to find F3 already you know, so F1 will be what, F1 will be 9 minus 5 which is 4, right, so ये आंसर आ जाएगा इसका 4, इट्स अ इजी क्वेश्चन, बस आपको सारे पैटर्न्स लिखने हैं, ऑल पैटर्न्स यू हैव टू नोट डाउन सो दैट यू कैन गेट द आंसर, राइट, चलो ठीक है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है गाइस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो तो देन देयर विल बी सम सिचुएशन,
Question number 4 देखिए, survey of certain year found that 90% of the pregnant women received medical care at least once before giving a birth. 90% of the pregnant women, pregnant women received medical MC, you can say, at least once before giving birth. मतलब 10% को नहीं मिलता है, no medical care. Of these women, 60% received medical care from doctors. तब 90% जो, तो 60% medicals received from the doctor and 40% received from the medical care from the healthcare provider, right? So आपके पास मान लो 100% है था, 90% receive medical and 10% do not receive medical, right? और यहाँ से भी आपको पता है कि it is they have given that 60% obtained from the, है ना, तो 60% of the 90 is nothing but what, 54% only, right? And this is 36%, right? ओके, ये हेल्थ केयर के द्वारा मिलता है, ये डॉक्टर से, ठीक है. Given the inform which of the following is the inferred? So more than half of the pregnant women, right, received medical care at least once from the doctor. More than half of the women. Okay, you see the options, you have got already everything, right? So इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, परसेंटेज आपको पता चल गया, तो दिख भी रहा है, ठीक है. इट इज ऑल्सो अपेरेंटली सी कि 45% मतलब मोर देन फ्रॉम 100%, 54% पीपल आर, वीमेन आर गेटिंग मेडिकल केयर, राइट? सो ऑप्शन ए डायरेक्टली इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और कुछ नहीं करना था, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द surface of a smooth three-dimensional object from outside. Okay, looking at the surface of the मतलब three-dimensional you can say object from the outside, which one of the following option is true? The surface of the object must be concave everywhere, right? Surface of the object must be convex everywhere. Okay, कॉन्वेक्स का मतलब आपको पता है, कॉन्वेक्स मीन्स अगर आप 2 पॉइंट लेते हो तो यू नो दैट शुड नॉट बी लाइक दैट, आई मीन दैट लाइन शुड ऑलवेज बी इनसाइड. द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी कॉन्केव इन सम प्लेसेस, कॉन्वेक्स इन अदर प्लेसेस. द ऑब्जेक्ट हैव एजेस बट नो कॉर्नर्स. क्वेश्चन क्या दिया है? लुकिंग एट द सर्फेस ऑफ द स्मूथ थ्री डायमेंशनल. अब देखो वो बोल दिया स्मूथ थ्री डायमेंशनल पिक्चर, राइट? स्मूथ थ्री डायमेंशनल पिक्चर. ओके, तो आपको लगेगा कि सर इट कैन बी लाइक यू नो द ऑब्जेक्ट कैन हैव एजेस बट नो कॉर्नर्स. ऐसा नहीं है, राइट? तो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी कॉन्केव इन सम प्लेसेस, कॉन्वेक्स इन सम प्लेसेस. दिस इज द राइट चॉइस फॉर अस, राइट? तो कुछ जगह कौन मतलब यू कैन से, है ना, कॉन्वेक्स रहेगा. ये ऑप्शन रॉन्ग है. अगर आप लगा के आ जाते हो तो फिर स्मूथ का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ, ठीक है. आई बिलीव दिस इज फाइन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन देखो यार, पैटर्न सेम है. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन दे आर आस्किंग, राइट? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. द कंट्री ऑफ द Jubiland is in the distress since more than 75 of its worker population suffering from serious health issue. कुछ negative बातें हैं. No, tone of the passage is kind of talking. Studies conducted by competent health experts concluded that complete lack of physical exercise among its working population was one of the leading cause of their health. मतलब समझ रहे हो ना? As one of the major to address the problem, the government of Jubiland has decided to provide monetary incentives to those who ride bicycle to work. Right? मतलब जो काम करते हैं, जो साइकिल चलते हैं, उनको monetary कुछ provide करना है, right? Based only the information provided here, which of the following is logically inferred from the uncertainty, right? देखो
So all the working population of the Jubilant will henceforth ride bicycle to work. Okay, riding bicycle will ensure that all of the working population is free from the health issues, right? ठीक है, ये आप ऑप्शन देखते जाओ कि क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा, मतलब ये तो फैक्ट है। राइटिंग विल इंश्योर व्हाट, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये क्या है इशू, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड ये भी नहीं है करेक्ट कि ऑल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जिम हैंस फोर्स राइड बाइसिकल, अगर इंसेंटिव देना चालू कर दें तो इंडिया में ऐसा हो जाए तो चालू हो सकता है। The health expert suggested to the government of Jubilant to declare riding bicycle as mandatory. Right? The government of Jubilant believes that riding bicycle ये हो सकता है. This is the right option for this question, right? So please try reading the question and understand the question. ठीक है? तो एक क्वेश्चन और आया था आपके मैथ से, अलजेब्रा से. That question also I have discussed in the classroom. Question number 7. Consider two function of a time ft equal to 0.01 t square, gt is going to be 40. तो देखो ये क्या दिया है, 0 to t, यहाँ मतलब 0 to infinity और t, okay. Now the consider two statement where for t greater than 0 gt is greater than ft, मतलब फंक्शन ग्रेटर है। सबसे पहले आप प्लॉट कर लो इसको, राइट। तो प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, पैराबोला टाइप, और एक फंक्शन आपका कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, 0 टू स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। ये वाला आपका पैराबोला है, यू कैन से 0.01 टी स्क्वायर, और ये वाला क्या है 40। तो आप देख सकते हो कि अगर 0 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन टी, जी टी इज ग्रेटर देन एफ टी। हाँ, जी टी आपका क्या है, ग्रेटर देन एफ टी है, यस, ठीक है। जी टी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ टी, राइट। फिर देयर एग्जिस्ट अ टी सच दैट एफ टी इज ग्रेटर देन जी टी। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा टी आएगा आफ्टर सम टी, यू नो, योर एफ टी विल आल्सो बी ग्रेटर देन। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, right? ठीक है। तो फॉर टी ग्रेटर देन जी टी इज ग्रेटर देन एफ टी, ओके, एंड देयर एग्जिस्ट सम टी, ओके, फॉर विच एफ टी इज ग्रेटर देन, यू कैन सी हियर after this, you can say after this t, right? Okay, so this guy can be greater, right? So this is very important to keep in mind. Sometime you can say. तो ऑप्शन ये क्लियर है आपको, अगर थोड़ा सा फंक्शन के बारे में आता है तो यू कैन सॉल्व इट. Now let us go to next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सीक्वेंसेस क्रिएट द कोहेरेंट नरेटिव. अब आपको सीक्वेंस देखना है क्या होगा. Once on the terrace on her way to her small room in the corner, she notices a man right away. तो पहला जो होगा तो है ना. Now she begins to pant by the time she has climbed all the stairs. Meena has brought vegetable and rice at the market, so her bags are heavy. He was leaning against the parapet watching the traffic below. Right? तो आप देखो इसमें पैराफ्रेज आपको करना है कि कौन सा पहला सेंटेंस होगा, मतलब काइंड ऑफ स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहला तो नहीं हो सकता, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑन द टेरेस ऑन हर वे हु इज देयर, राइट। पहले तो नेम आना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला काइंड ऑफ डी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब थर्ड से नेम आना चाहिए ना, तभी आप फिर उसके बाद प्रोनाउन एंड ऑल यूज कर सकते हो, तभी तो समझ में आएगा ना कि किसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो ऑप्शन थर्ड ये यही करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं, कि थर्ड से स्टार्ट होगा, बस 2 मार्क 3 का ये था। कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन से, फिर से अलजेब्रा से, जो अपन क्लास में अच्छे से किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. So fx and gy are the function x and y respectively, where fx equal to gy for all the real value of x and y. दोनों फंक्शन बराबर हैं यहाँ. Which of the following option is necessary true for all the x and y, right? So ये बहुत ही important question है, right? So ये बताइए आप क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो given that fx equal to gy, right, ठीक है, for all the real value of x and y, it is necessary that
you can recall the definition of function that I have talked about, right? The image of x under f is same as the image of y. Okay, that is what the situation is. तो इस केस में आपका क्या आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो ऑप्शन बी इज नथिंग बट व्हाट? ओके, वेयर एफ एक्स इक्वल टू जी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये बहुत ही सही क्वेश्चन था. ओके, बिकॉज यहाँ एफ एक्स है, यहाँ जी वाई है, तो are function of x and y respectively, and they are saying that fx and gy for all real values of x and y, okay, equal हैं. So this can be the correct answer. And question number next is 10 question. ठीक, फिगर रोटेशन से आया है, बस आपको जो बोलता जाए वो करते जाइए, बस आंसर आ जाएगा. ठीक, let me take that question, and this is the last question of the day also from the aptitude. Okay, so hopefully you might have enjoyed the session, guys. मैंने आपको सारे टॉपिक पढ़ाए हैं एक एक करके, और आई होप आप लोग 15 में 15 उठाओगे. थोड़ा सा मेहनत तो करना, इतना हरी में नहीं रहना अरे बस क्वेश्चन आया और डायरेक्ट आंसर, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग ऑफ द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टू डायमेंशनल पी टू क्यू एंड देन आर एज सोन. देखो पी था ये, फिर आर आ गया, ऑपरेशन 1 आपको रोटेट किया. ठीक है, ये कैसा रोटेट, देखो कितना है रोटेशन, कितना है इसमें. ठीक है, एंड देन क्यू टू आर. ठीक है, तो आपको पी से क्यू कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. देखो मतलब आप देख सकते हो क्या हुआ है. ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको अगर इसको 180 डिग्री पूरा शिफ्ट करना है, राइट, अगर आप इतना करते हो तो 90 होता है, टोटल करोगे 180 होगा, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. तो ये क्या दिया है, कौन सा ऑपरेशन करेक्ट है? फर्स्ट ऑपरेशन, a clockwise rotation by 90 degree about an axis perpendicular to the plane of the paper. Reflection about the horizontal axis. ठीक है, ऑपरेशन टू रिफ्लेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर इमेज. ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें. दैट कैन बी करेक्ट हियर, राइट. आई मीन रिफ्लेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज करेक्ट. अगर इसमें बोलता कि रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ये वाला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी फ्रॉम हियर टू हियर, राइट. और ये वाला क्या होता, इधर हो जाता, राइट. तो ये तो रॉन्ग है, मतलब जिसमें आपको वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बोला है. एक बार आप आंसर भी चेक कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो ऑप्शन ए कैन बी करेक्ट हियर, मतलब ये तो रॉन्ग है, राइट. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेशन वाला. तो वाटर इमेज होगा, ये वाटर इमेज है, एंड 90 डिग्री अबाउट क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे, है ना. ठीक है, ऑप्शन. Thank you so much, guys. We have completed, question from 2021 to 23, and I have completed entire aptitude. So all the best for GATE examination. We'll meet in future season. Thank you.